भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। President ABP JNU, Shikhar Swaraj, Secretary ABP JNU. Following our long-held tradition of welcoming the guests with a holy toasting, may I now request senior student Raj to come on the dais to honor our guests. In order to begin the talk, now I would like to invite Rajesh Ubera. Namaskar everyone. On the behalf of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, I welcome you all on this platform discussing the union budget. When we talk about the union budget, one must not see this just as a financial document, but it is a roadmap of our future economic studies that directly, I'd say, is the direct interest of students and professionals. Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad has always advocated and has always ensured that the voices of students, professionals may be heard, and not just heard but inculcated into economic and national policy making. Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad has already worked hard on implementation of NEP 2020, has also contributed in various aspects in this policy document. When we talk about the budget, we must not see the budget as a number, as a quantity, but how much does it reflect our educational, traditional, and social priorities. We do have with us the esteemed guest, Sri Krishna Gopal Agrawalji. With his deep insight, we'll be able to delve into the greater depth that how the students, the professionals, the researchers may get the best out of this union budget. So on the behalf of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, I again welcome Sri Krishna Gopal sir on this ABVP month. Thank you, sir. Gopal Krishna Agrawal sir on this ABVP month. Thank you. Sir is also a national spokesperson of BJP, and for that, now I would like to invite sir to enlighten us on budget. धन्यवाद. मैं bilingual रखूंगा, where I'll be speaking in both languages, Hindi and English. I'm very happy to be present in JNU, जो इसका एक ऑरा है, जो इसके प्रति लोगों के मन में, इस प्लेटफॉर्म के प्रति जो सम्मान है. तो यहाँ पे बजट के ऊपर इस डिस्कशन में आज मुझे बुलाया, इसके लिए मैं ABVP JNU के का आभार भी प्रदर्शित करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर यह आज चर्चा रखी है. मेरे साथ राजेश्वर जी हैं और शिखा जी, और यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द JNU फ्रॉम द स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, है ना, और भी होंगे, और भी स्कूल से भी हैं. चलिए, आप लोगों ने निर्मला सीतारमण जी का जो भाषण है, किसने सुना था पार्लियामेंट में? आपने सुना था, ठीक है. बजट के ऊपर उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स आए, बहुत डिबेट्स हुए, वो सब ने कुछ ना कुछ सोशल मीडिया का टाइम में देखा होगा. बजट क्यों इम्पोर्टेंट है और हम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? मैं यूनिवर्सिटीज में भी कई जगह जाता हूँ
एक्चुअली क्या है कि वी ऑल हैव टू बिल्ड अवर कैरियर्स. We are in the stage, particularly all of the students here, they are building up their career. They have to decide where they should align their future. That is very important. And I always tell the students and those who are working in the building up of their careers, study what the government focus is. Study which are the areas which are focus, where the government investment is coming. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइन योर ओन कैरियर विथ इट. अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने कैरियर को गवर्नमेंट के प्रायोरिटीज और इन्वेस्टमेंट के एरियाज के साथ अलाइन कर देते हैं तो आपको इंडिविजुअली भी फायदा होगा, साथ में उसके साथ जो अपने समाज को, देश को भी फायदा होगा. हम सब चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत स्थिति में रहे, हम बहुत विकसित भारत के रूप में जाएं. और आप जो जिस उम्र में हम सब लोग हैं, आप लोग हैं, वो विकसित भारत जो 2047 को प्रधानमंत्री जी इस लक्ष्य को लेके हम सबके सामने चले, तो उसके लिए एक पार्टिसिपेशन में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा. यू विल बी वन ऑफ द वेरी बिग बेनिफिशियरी ऑफ दैट, है ना. इसलिए बजट और इसके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के फोकस्ड एरियाज ये, और आज के समय में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, उसके अनुसार एनी वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्रीज, पीआईबी रिलीजेस, सोशल मीडिया, सब पे एक्सटेंसिवली उसके बारे में रहता है. तो एकदम डिटेल केवल प्रोविजंस पे चला जाऊं मैं, आपको टेक्निकल, बिकॉज आई एम बाय प्रोफेशन एजुकेशन, आई एम done economics also, I am an economics student also, but I am a chartered accountant also. तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल टैक्स लॉज के इंट्रिकेसीज, प्रोविजंस पे चला जाऊं, उसका कोई बहुत औचित्य नहीं. कभी भी जाएंगे गूगल में किसी भी प्रोविजंस को देख सकते हैं, लेकिन ओवरव्यू मैं जब आपके सामने रखूंगा. बजट के साथ हमें इकोनॉमिक सर्वे को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हमारी करंट इकोनॉमिक पोजीशंस को दर्शाता है. व्हाट इज द करंट स्टेटस, वेयर व्हाट यू हैव अचीव्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर यू वांट टू गो. इसका लिंकेज जो लिंक आता है वो आता है इकोनॉमिक सर्वे में, कि व्हाट इज योर टारगेट, वेयर यू वांट टू गो एंड व्हाट यू हैव अचीव्ड. और इसके गैप को भरने के लिए क्या है, वो बजट प्रोविजंस है. तो अगर हम जो 2023 में या 21 में या इसके पहले क्या बजट आया था उससे बहुत कंपेयर करेंगे तो कोई बहुत बड़ा हम लक्ष्य हासिल, अपना ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाएंगे. वी हैव टू सी व्हाट इकोनॉमिक सर्वे हैज प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हाट प्रोविजंस हैज बीन डन. तो यह एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए. इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले आया था, उसने इकोनॉमी के बारे में काफी ट्रांसपेरेंटली चैलेंजेस भी बताए और व्हाट इज द करंट स्टेटस के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से किया. तो इकोनॉमी देश की महत्वपूर्ण जो स्थिति है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है उसके बारे में हम सब जानते हैं कि दे आर क्वाइट रोबस्ट एट प्रेजेंट टाइम. इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. लार्ज इकोनॉमीज, कोई छोटी छोटी इकोनॉमी कोई बढ़ रही हो उसका कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, बट the major large economies in the world, considering them, India is one of the fastest growing economy as per GDP growth rate. India is one of the fastest growing. हम लक्ष्य भी रख के चले हुए हैं. हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो मोर देन $700 बिलियन का क्रॉस कर गए थे दिसंबर. और $700 बिलियन मतलब 10 मंथ्स का इंपोर्ट का हमारे पास कवर है. और डेट टू इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफी अच्छा कवरेज है. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत अच्छे हैं. हमारे पास एफडीआई जो है, जो एफडीआई हमारे यहाँ पे आ रहा है, वी आर अट्रैक्टिंग ऑलमोस्ट हाईएस्ट एफडीआई इन द वर्ल्ड. ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी के लिए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री के लिए लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये तीन इंपॉर्टेंट जरूरी होती है. हमारे पास लेबर अच्छी तरह से अबंडेंट स्थिति में है. हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी, मिनरल रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज आर इन अ वेरी गुड
position. India is in a very good position, but हमारे पास we are short of capital. So globally भी आप जितने भी geopolitical development देखोगे, global platform देखोगे, competitive in the global arena देखेंगे, तो they are all fighting for attracting highest FDI. Which country attracts highest FDI? दो कारण है उसके लिए. एक तो you will put money where you are sure that your money will be safe, and second is you will have growth in your money. So if the global investors are putting their money in some certain economy, that instead so shows that the economy is doing good. तो यह एक कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के रूप में भी एफडीआई को लेते हैं. उसमें इंडिया इज अट्रैक्टिंग हाईएस्ट एफडीआई अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये कंटिन्यूअसली कई वर्षों से कुछ पिछले 10-11 वर्ष से जब हमारी सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में, तो यह देखेंगे कि यह पूरा स्ट्रक्चर्ड देखेंगे. हमारी 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है. वी वांट टू अचीव 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030. तो यह ग्लोबल आज मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छे इकोनॉमिक सर्वे बताता है, लेकिन उसके साथ एक दो चैलेंजेस भी बताता है. वो बताता है चैलेंजेस ये हैं कि रेगुलेशन, अगर हमें इकोनॉमी को यहाँ से प्रोपेल करके आगे बढ़ना है, ग्रोथ ओरिएंटेड पाथ पे जाना है, तो हमें रेगुलेशंस जो हमारे यहाँ पे कंप्लायंसेस कॉस्ट है, क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होने के लिए करने के लिए हम कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट के लिए केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर प्रोडक्शन करे, एमएसएमई या इंडस्ट्रियल सेक्टर या करेंगे, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा. तो हमारे देश का मार्केट बहुत बड़ा है, एमएसएम डोमेस्टिक मार्केट काफी बड़ा है, फिर भी ग्लोबल मार्केट को सप्लाई किए बगैर कोई इकोनॉमी ग्रो बहुत स्ट्रांग तेजी से नहीं कर सकती. हमने चाइना का पिछले 30 साल में देखा है कि क्यों ग्रो करा, क्योंकि उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया और ग्लोबली उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इंटीग्रेट किया, जिसको कहते हैं रीजनल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन. तो रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, और उसके लिए वो इंटीग्रेट करने के इच्छा से तो कोई काम नहीं होता. हम कितनी इच्छा कर लें, लेकिन जब तक हम ग्राउंड लेवल पे उस पर काम नहीं करेंगे वो पॉसिबल नहीं है. तो वी हैव टू इंटीग्रेट अवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनटू रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन. फॉर दैट we have to make our industries globally competitive. For that, the regulation, deregulating the economy, deregulating the whole economic ecosystem is very important. यह उसने इकोनॉमिक सर्वे ने बताया, और उसके साथ उसने एरियाज को भी आइडेंटिफाई किया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है. तो यह अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि our economy at this time is robust and we have the potential to achieve the Viksit developed nation by 2047. We target that. But having a potential doesn't mean that you have realized that. You may have a potential with high caliber, but you have to realize that on the ground level. उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा. So this budget lays, Prime Minister said one day before the budget came that this budget will lay the foundation for Viksit Bharat. What is Viksit Bharat? What is our aim? What is the vision? How do we want to achieve it? और केवल पोटेंशियल या इच्छा से हम नहीं अचीव करेंगे. दिस बजट लेज डाउन द फाउंडेशन फॉर अवर विकसित भारत. तो इस बजट में 4-5 चीजें मैं आपको बेसिक बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है इस बजट के हिसाब से, जिनको वो इकोनॉमिक सर्वे के बाद ये बिल्डअप करते हैं. वह यह है कि इन दिस बजट it lays clear vision of what is Viksit Bharat, what we think of our country as a developed nation by 2047. कई सालों से आप लोग सुनते होंगे कि विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है. तो उसके लिए हमारा विकसित भारत क्या है, वह क्या कॉन्सेप्ट इसमें बजट में ले डाउन किया है, ताकि हमारा गोल क्लियर हो जाए, कहाँ हम जाना चाहते हैं. दैट बिकम्स क्लियर फॉर अस. एंड वो सेड they have put 4 important aspects where
the Prime Minister and the Finance Minister and our government thinks, because I look after the economic affairs in the party और spokesperson हूँ, तो मैं वो पॉइंट हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से विकसित भारत के कॉन्सेप्ट में, तो उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जीरो पॉवर्टी. In the last 4-5 years, 25 crore people have been pulled out of the poverty line, below poverty line in the country. और पावर्टी रिडक्शन बहुत तेजी से हुआ है. उसके कई कारण हैं जिसको इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा है कि यू कैन. देखिए प्रॉब्लम क्या है कंट्रीज में, व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज एट अ वेरी फास्ट पेस, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता ही है. ग्लोबल आप किसी भी कंट्री के देखेंगे विच हैव डेवलप्ड एट अ फास्ट पेस, देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ विच इज अ बाय, it is inevitable. But what the government does is create a distributive model so that equality of income जो है concentration को काउंटर कर सके. ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है. 3 फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में. एक इज वेल्थ क्रिएटर, जो किसान और इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग मानते हैं, क्योंकि बीजेपी में हमारी फिलॉसफी में वी कंसिडर दैट industrialist business community is also a part of the nation building. They should not be just bashed for everything, and they should not be, they are doing an important work. In addition to farmers, kisan, this manufacturing, industrialist and business community is also a part of the nation building, and they are considered as wealth creators. And दूसरा है प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, जो प्रोफेशनल चाहे डिफरेंट प्रोफेशंस में काम करते हैं, दैट इज जनरल कैटेगराइज करते हैं हम लोग कि दे आर वेल्थ मैनेजर्स. वंस द वेल्थ इज क्रिएटेड they manage, and the government role is an important role is wealth distribution. Government is considered to be an important part in wealth distributive role, and the government over the last 10 years we have put lot of effort in creating efficiency and plugging the leakages, plugging corruptions, etc., and bringing efficiency in the distribution of welfare schemes of the government and give them a target delivery. मैं गांव में कई जगह जाता हूँ, इलेक्शन कैंपेन है उनमें भी आप लोग भी देखते होंगे कि at a click of button, crores and crores people get their money in their bank account at a click of button without any leakages or without any corruption. It goes directly to their account. So efficiency in distribution, concentration of wealth is an issue. Concentration of wealth takes place when the economy grows at a fast pace, but to check that a distributive model, efficient distributive model has to be built, use of technology, integrate the stakeholders into that technology, create a performance metrics for them, because everything over the last 11 years we have done is create a clear cut target. 4 crore houses, 19 crore houses to be provided with free drinking water, 12 crore such under Swachh Bharat toilets to be built under Swachh Bharat mission. Everything has been targeted. More than 50 crores bank account through efficient for Jan Dhan account and direct benefit transfer have been opened. So everything is targeted so that efficient delivery comes. तो इसलिए zero poverty elevation is one where zero poverty should be there in Viksit Bharat. Then second target that has been kept is 70% of the women should participate in economic activity. They should almost 70% of our women population, they should participate in some kind of economic activity. That is the second. Third is objective is vision is about quality education. Government has focused through NEP or through other so many initiatives. Government, there are so many programs and schemes that the government has taken where this will be education sector will be enforced, and quality education has to be provided, whether through uh,
the excellence, center of excellence and other initiatives are there. And then fourth is quality health care. Health care, there are a lot of initiatives where these four objectives of clear vision for 2047 has been laid down. And the next part is which are the segment that our government is focusing through this budget is in every provision. There are hundreds of provision in the budget. Four segments of the society find benefit. One of the four segment of the society finds benefit from this budget. That is Gyan, which Prime Minister calls Gyan. Garib, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति. अगर आप सारे बजट के प्रोविजंस में देखेंगे तो कोई ना कोई इन चार सेगमेंट्स में, हर प्रोविजन में, बजट के प्रोविजंस में, बजट के प्रावधानों में आप देखेंगे कि चार में से किसी न किसी सेक्टर को बेनिफिट सरकार ने दिया हुआ है. गरीबों को, गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लेके आना है. युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, चाहे स्किल डेवलपमेंट के रूप में, चाहे उनको अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट के रूप में, ऐसे कई चीजें की है. गरीबों के लिए तो बहुत सारी स्कीम, 36 लाख करोड़ का पिछले 10-11 साल में सरकार बिना किसी जीरो लीकेजेस के लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर पाई है. और इसी कारण 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हुए हैं. इसमें अन्नदाता किसानों के लिए भी बहुत सारे प्रोविजन है और नारी शक्ति महिलाओं के लिए है. अब उसके बाद जो सरकार ने कहा कि अगर हमने टारगेट ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया, हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया, क्लियर विजन फॉर विकसित भारत कर दिया, हमने उसके अंदर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चीजें भी कर ली, लेकिन हम उसको कैसे अचीव करें. तो थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बजट इज अबाउट द ग्रोथ इंजिन्स, बिकॉज वी नीड रिसोर्सेज. अगर आप if you government does not generate resources for the welfare schemes, तो फिर तो it is complete failure. You will just distribute equality. आप सबको गरीब करके भी, हमारे से जो काउंटर आइडियोलॉजी है वो कहते हैं हम अमीर नहीं बना सके तो सबको गरीब बना देते. तो वो एक तरीका वो है इक्वलिटी लाने का, जो कम्युनिज्म में कई जगह हमने पढ़ा है तो उसमें वो करते हैं. लेकिन हम लोग कहते हैं वेल्थ क्रिएशन करना बहुत जरूरी है. तो ग्रोथ इंजिन्स आइडेंटिफाई किए हैं सरकार ने, 4 ग्रोथ इंजिन्स किए हैं जिससे इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी. उनसे सरकार के पास रिसोर्स जनरेट होंगे. उन रिसोर्स जनरेशन के बाद एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से हम जीरो पॉवर्टी के और स्ट्रांग इकोनॉमी और एक विकसित भारत विच टू बिकम्स इकोनॉमिक पावर, ये जरूरी है, उस चीज को हम अचीव करेंगे. देखिए, हम कई बार, हम इतिहास के भी यहाँ पे कई स्टूडेंट होंगे, एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का इतिहास हजारों साल का है और ये सिविलाइजेशनल कल्चर है हमारा. सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है. एक समय था, एक बीच में कालखंड आया 1000 साल का जब हम गुलाम बन गए. उसके पहले हम आर्थिक रूप से बहुत सशक्त थे, और जब हम आर्थिक रूप से बहुत सशक्त थे, हम ऑलमोस्ट 27% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी और ट्रेड को कंट्रोल करते थे. तो उस आर्थिक संपन्नता के कारण हम आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, इन सारे सेक्टर्स में हम ग्लोबल लीडर्स थे. लेकिन उसके बाद हम 1000 साल की गुलामी में आ गए, और जब हम स्वतंत्र हुए 1947 में, तो मात्र 2% से भी नीचे हम ग्लोबल जीडीपी को वो करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे ट्रेड को. तो हमारे अंदर गरीबी, भुखमरी, अनएजुकेशन, ये सारी स्थिति हमारी 1947 में आई. उसके बाद अब 77 वर्ष हो गए. तो हमें अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो हमें आर्थिक महाशक्ति बनना जरूरी है. आज ग्लोबल इंटरेस्ट इंडिया में आप देखते हैं, वो इसलिए नहीं देखते कि उन्हें भारत से बहुत प्रेम हो गया, वो समझ रहे मोदी जी से प्रेम हो गया, अपने से भारत से प्रेम हो गया. कोई नहीं है. वो यह मान के चल रहे हैं कि आने वाले 1 और 2 डिकेड्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड दे वांट टू पार्टिसिपेट. अभी मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्मृति ईरानी जी गई थी, तो वहां पे आके वो बता रही थी कि
अयोध्या में वहां पे सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात हो रही थी कि हाउ डू वी इन्वेस्ट इनटू अयोध्या। जब वो उसमें इकोनॉमिक फोरम को अभी तो 8-9 महीने हो गए तब की बात बता रहा हूँ, तो एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड कि हाउ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन अयोध्या, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज सो दैट वी कैन पार्टिसिपेट देयर। तो इकोनॉमिक पावर में पार्टिसिपेशन की बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना जो है वो बहुत जरूरी है अगर ग्लोबल लीडरशिप को अटेन करना है। तो 4 इंजिन ऑफ ग्रोथ इस बजट में आइडेंटिफाई। और बजट एक चीज समझिए, ये 1 साल का होता है। अगर हमने 4 चीजों पे फोकस किया तो कल कोई बोल सकता है और भी यहाँ पे चर्चा हो, भाई इसको नहीं फोकस किया। तो 1 साल में एक फोकस, अगर 50 लाख 50.56 लाख करोड़ का या बजट है 1 साल में, जो ऑलमोस्ट 13-14 लाख करोड़ का था 2014 में, वहां से बढ़ के 3 टाइम से भी ऊपर हो गया है। तो उसके साथ रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स से जनरेट हो रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से जनरेट हो रहे हैं। टैक्स रेट भी हमने कम करना है। मिडिल क्लास को इस वक्त टैक्स रेट इतना कम कर दिया है इस बजट में, आप लोग जानते होंगे 12 लाख तक करोड़ के 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री कर दिया है किसी को, और सैलरी वाले को तो 12,75,000 तक का नील टैक्स है। उसके बाद जो स्लैब्स हैं उसमें भी कमी की है। उसके पहले पीछे 1-2 बजट के पहले कॉर्पोरेट टैक्स जो 30-35% था उसको कम कर दे हमारी सरकार ने। ऑलमोस्ट आज के डेट में 26% का कॉर्पोरेट टैक्स है। 30 और 40%, एक बार तो इंदिरा गांधी के टाइम पे 75% का भी टैक्स उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स लगा दिया। तो उसको हमने कम किया, लेकिन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा है। डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करने के बाद फिर भी इनकम टैक्स बढ़ा है, लोगों की कंप्लायंस बढ़ी है, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ी है, नेट हमने टैक्स नेट को बढ़ा किया है। ऐसे ही जीएसटी के अंदर, जीएसटी जब 2016 में लागू किया गया था उस समय इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा कई लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि देश में जो टैक्स है वो हर आदमी नहीं देता, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति देता है। एक बच्चे भी कोई पेंसिल खरीदती है या कुछ बुक खरीदता है कोई व्यक्ति, तो वह इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में देता है। तो जीएसटी जो है पहले हिडन था, प्राइस में पता नहीं चलता था, वो एवरेज 25 से 30% था। 2016 में जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के अंदर लेके आए तो 2 साल पहले आरबीआई की रिपोर्ट आई थी कि इनडायरेक्ट टैक्स एवरेज हैज बिकम 11.6%। यानी इनडायरेक्ट टैक्स भी इतना कम कर दिया। और उसमें भी डिफरेंशिएशन किया है कि असेंशियल कमोडिटीज में जो रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजें उसमें 0 और 5% का टैक्स है। जो लग्जरी आइटम्स है उसी में बहुत कम आइटम्स है, लेकिन उसमें ही 28% का, और 18 और 12% में मैक्सिमम आइटम आते हैं। लेकिन एवरेज जीएसटी इंसिडेंस ऑफ टैक्स है 11.6%। तो और उसके बाद भी हर महीने हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टैक्स जो है, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ टैक्स है जीएसटी के अंदर भी बढ़ता जा रहा है। तो यह चीज वो है, तो वो रिसोर्स को भी जनरेट कर रहे हैं, टैक्स को भी कम कर रहे हैं। और किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इसमें जैसे 4 इंजन ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर। किसान, क्योंकि 57% ऑफ और पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इनटू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव सेक्टर्स के रिफॉर्म किए हैं, एफपीओ किए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस किए हैं। रूरल ग्रो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उसके अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे बहुत सारे स्कीम सरकार लेके आए। आजकल बजट केवल एक स्टेटमेंट के साथ भी बहुत सारे रिफॉर्म्स और सरकार करती रहती है कंटिन्यूअसली। तो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं। और एक स्कीम मैं सबसे महत्वपूर्ण बताता हूँ कि जब ये जन कल्याणकारी योजनाओं को इतना स्ट्रांगली क्यों सरकार इम्प्लीमेंट कर पाई, वो कारण ये था कि हमने 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए। हमारे यहाँ लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश में। उसमें सरकार ने जब जन कल्याणकारी योजनाओं का, वेलफेयर स्कीम्स का पेनिट्रेशन पिछले 60-65 सालों में 30% पॉपुलेशन को ही उसका जो एलिजिबल है उनके में से 30% पॉपुलेशन को ही वेलफेयर के बेनिफिट मिलते थे।
हम लोगों ने पिछले 10 साल में लगभग 60% का उसको वेलफेयर बेनिफिट को लोगों तक पहुंचाने का किया, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 100% सेचुरेशन का टारगेट रखेंगे, यानी दोज हु आर एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द मेजर 7 वेलफेयर स्कीम्स दे शुड गेट। और उसके लिए क्या किया, 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए, दोज डिस्ट्रिक्ट विच आर अंडर डेवलप्ड, पुअरली डेवलप्ड, उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करके उस आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को और कलेक्टर, और उसको जिम्मेदारी दी कलेक्टर और डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को, कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई those people who are eligible for one of the 7 beneficiary schemes and connect them to that scheme so that they get benefit, and the last 30-40% जो बची हुई पॉपुलेशन है उसको यू हैव टू कनेक्ट एंड 100% सेचुरेशन को आपको काम करना है। और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ, उसको हम कहते हैं पुश मॉडल। पहले था पुल मॉडल की, सरकार ने अपनी स्कीम अनाउंस कर दी और ऑफिसर घर में बैठे हुए हैं, अब मैं एलिजिबल हूँ किसी स्कीम का, तो पहले तो मुझे स्कीम ही नहीं पता, फिर पता चल गई तो मैं कलेक्टर और डीएम और इनके ऑफिस पे दौड़ रहा हूँ कि कैसे इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करना है, और फिर उसके बाद चक्कर लगा लगा के कई बार हमें मिलती नहीं थी। तो ये था पुल मॉडल की, इफ आई एम ए बेनिफिशियरी आई हैव टू look after the scheme and get benefit. अब we are working on the push model that the collector and DM has to ensure. तो यह जो पूरा ये जो सिस्टम था, तो रूरल इकोनॉमी में इस बार प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो लाए हैं, सेम वे एग्रीकल्चर, दो ग्रोथ इज अराउंड 3.8% का जीडीपी, ये एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हो रही है, बट इट है 57% ऑफ आवर पॉपुलेशन is dependent on agriculture and we want to stop the migration of the rural population. FM ने कहा है कि जो migration should not be a necessity but it should be an option, है ना, कि nobody is to compelled to migrate because of no employment opportunity in its area. तो उसके लिए सरकार ने 100 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में विच आर पुअरली डेवलप्ड, और उनके अंदर फोकस तरीके से काम करेंगे ताकि जो सबसे जो वीकेस्ट चेन जो है देश की उसको मजबूत करने का काम करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट जो स्कीम्स है, ये सारे काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको पीपीटी भी दे दूंगा, आप शेयर कर सकते हैं। ये सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को ये स्कीम्स दी हुई है, तो मैं प्रोविजंस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत अच्छे प्रोविजन सरकार ने किए हैं, और उसके बाद जो सेकंड जो एरिया आता है वो है एमएसएमई सेक्टर, और 60% ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है ग्रोथ को प्रोपेल करने के लिए, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को में एमएसएमई सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। 60% ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम एमएसएमई सेक्टर। उनके बहुत सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस है, जो मैंने कहा बजट में, इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा था कि उनके कंप्लायंसेस को सिंप्लीफाई करना है, उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, उनको हैंड होल्डिंग करना है, उनको मार्केट अपॉर्चुनिटी देना है, उनको बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं ताकि वो सप्लाई चेन, रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होके काम आगे बढ़ा सके। तो सेकंड इज एमएसएमई सेक्टर, 60% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम एमएसएमई सेक्टर, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अभी 17 से 18% है, उसको टारगेट किया सरकार ने कि 15-25% हम कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। तो एमएसएमई के ऊपर सरकार ने बहुत सारे प्रोविजंस और इम्प्रूवमेंट इस बजट में अलग से चैप्टर वाइज किए हुए हैं। इस बजट में क्या किया है कि बजट के मेन डॉक्यूमेंट को सिंप्लीफाई किया और 11 एनेक्शर्स लगाए कि हर सेक्टर को, जिसको एमएसएमई में इंटरेस्ट है वो एमएसएमई वाले एनेक्शर को देख ले, जिसको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को देख ले। तो ये दूसरा जो है वो एग्रीकल्चर एमएसएमई सेक्टर है, जो कि सरकार ने उसको क्रेडिट वगैरह की बात की है,
तो उनको क्रेडिट गारंटी दी है, बैंकों को फोकस करके कहा है कि कोलेटरल फ्री आपको इंटरेस्ट देना है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अटल टिंकरिंग लैब, स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत जबरदस्त बूम आ रहा है, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में देख लो, चाहे फिनटेक में देख लो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख लो, एआई में देख लो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में देख लो, रिन्यूएबल एनर्जी में देख लो, ये सारे ऑटोमोबाइल देखो, फार्मास्यूटिकल देखो, 14 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे सरकार ह्यूज सपोर्ट दे रही है, ह्यूज फंड्स दे रही है, उनको पूरी तरह हैंड होल्डिंग कर रही है। तो वह प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से सरकार इस सारे सपोर्ट करने का काम कर रही है। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन सरकार ने इस बजट में आइडेंटिफाई किया है वो है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट इनटू 3 कैटेगरी आइडेंटिफाई किए। इन्वेस्ट इनटू इकोनॉमी, यानी ओवरऑल इकोनॉमी में जहां जहां जरूरत है वहां पे पैसा सरकार पहुंचाएगी, लगाएगी, उसके रिफॉर्म्स भी करेगी। रिफॉर्म्स भी इन्वेस्टमेंट ही होता है इकोनॉमी में। सेकंड है पीपुल, जो लोगों को स्किलिंग करनी है, जो मैंने कहा था कि स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग देम स्टार्टअप इकोसिस्टम एटसेट्रा, एंड इनोवेशन। इसमें भी सरकार ने सेवरल फंड्स क्रिएट किए हैं। जैसे एआई के लिए 500 करोड़ का अलग से फंड किया है। गिग वर्कर्स के लिए सरकार ने पीपुल में इन्वेस्ट करते हैं। गिग वर्कर करीब 1 करोड़ लोग हैं जो कि हम देखते हैं उबर, ओला और इन सब चीज़ों में बहुत सारे आजकल अपॉर्चुनिटीज बन रही है, बट दे आर नॉट इनटू रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। तो उनके लिए बहुत सारे प्रोविजन सरकार ने इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस के, ऐसे कई उनको फॉर्मलाइज करने का काम किया है। तो वह पीपुल, इनोवेशन एंड इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट सरकार काफी कर रही है, ग्रोथ इंजन के रूप में आइडेंटिफाई किया। और चौथा एक्सपोर्ट, मैंने बताया है कि रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर सरकार काफी काम कर रही है। अब सरकार ने यही नहीं किया कि आइडेंटिफाई तो कर लिया ये चीजें, कि गोल भी ले लिया हमने, कौन से सेगमेंट को ध्यान रखना है वो भी कर दिया हमने, ग्रोथ इंजन भी आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन उसको अचीव कैसे करना है उसके लिए 6 एरिया आइडेंटिफाई किए, जिसमें सरकार अपनी, सबसे पहले सरकार क्या काम करेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, पूरे 6 एरियाज आइडेंटिफाई किए जिसके अंदर सरकार फोकस तरीके से काम करेगी कि उन एरियाज को रिफॉर्म्स करने के लिए उन एरियाज में सरकार काम करेगी, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वह पूरा होगा। कितनी देर है? हाँ? है ना? हाँ, हाँ। फिर भी आई वांट टू हैव सम क्वेश्चंस आल्सो ना, ठीक है? तो मैं एक बार आपको वो 6 एरियाज आइडेंटिफाई कर दूंगा। देखिए, एक सरकार ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स कमिटी एक बनाई है, और उसमें बिकॉज वी वांट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये थर्ड स्टेज पे हमें आना है कि वी हैव टू रिफॉर्म, क्रिएशन ऑफ रिफॉर्म्स, देन परफॉर्म एंड देन ट्रांसफॉर्म। अब मैं आपको बता, कई लोग कहते हैं कि 1991 में बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, दैट वाज ए कंपल्शन। कई लोग यहाँ पे जानते नहीं होंगे, हम लोगों के पास इतनी हालत बुरी हो गई थी 1991 में कि हमारे पास 1 सप्ताह का भी इंपोर्ट का पैसा नहीं था। वी वर ऑन द वर्ज ऑफ हैविंग अ डिफॉल्ट ऑन डेट पेमेंट। सॉवरिन डेट पे जब सरकार, अगर हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, किसी के ऊपर कर्ज हो जाए और कर्ज दाता अगर हमारे घर पे आके चक्कर लगाने लगे तो कितनी शर्म की बात है। उस तरह की हालत हो गई थी कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर ऑन डेट, इंटरेस्ट पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑन लोन टेकन अंडर द सॉवरिन डेट। पूरा हमारा सॉवरिन डेट, जो कंट्री का संप्रभुता है, वही स्टेक पे लग गई थी। तो वह उस स्थिति में रिफॉर्म किए, तो दैट वाज रिफॉर्म्स अंडर कंपल्शन। ऐसा कोई कंपल्शन आज नहीं है। जब स्वयंभू तरीके से, अपनी इच्छा से अपना आगे ट्रांसफॉर्मेटिव
फोकस करके रिफॉर्म्स किए जाते हैं तो वह एक महत्वपूर्ण है। यू आर नॉट डूइंग अंडर कंपल्शन बट यू आर डूइंग अबाउट नेसेसिटीज, यू आर डूइंग रिफॉर्म्स विच आर good for the nation. We have a strong position. We have to find the gaps and work on that. तो सरकार ने ट्रांसफॉर्मेटिव लेजिस्लेटिव कमेटी बनाई है। उस कमेटी का फॉर्मेशन होगा। उस कमेटी के अंदर मेंबर्स भी होंगे। लोगों से वो काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से वह लोगों के एस्पिरेशंस और उनकी आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को समावेश करेगी और उसके बाद वो रिकमेंड करेगी सरकार को कि पॉलिसी चेंजेस क्या करने हैं, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स क्या करने हैं, क्या जो एक ट्रांसफॉर्मेशन इस बजट के अंदर सरकार ने कहा कि हम करदाता जो टैक्स पेयर है उसका सम्मान करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको उसको सर्टिफिकेशन क्रेडिबिलिटी देंगे और टैक्स पेयर अनलेस इट इज we will not consider them tax evader unless proved wrong. First, we should work on the trust basis. और उसके लिए बहुत सारे रिडंडेंट क्रिमिनल लॉज जो हैं 1500 लॉज जो कि क्रिमिनल लॉ जो कि रिडंडेंट लॉज थे उनको पीछे सरकार ने नलीफाई किया। इस बजट में भी 100 और लॉज आइडेंटिफाई किए। ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट FSDC करके कमेटी के माध्यम से फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स करेगी, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करेगी। वो रिफॉर्म्स के ऊपर पूरी मेजॉरिटी से काम करेगी सरकार। तो जो 6 काम सरकार ने अपने लिए आइडेंटिफाई किए हैं उसमें पहला है टैक्सेशन। टैक्स को सिंप्लीफाई करना है, टैक्स को एफिशिएंट बनाना है, टैक्स कलेक्शन को एफिशिएंट बनाना है और टैक्स रेट्स को इंसिडेंस ऑफ टैक्स को कम करना है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स को कम करके कंप्लायंस को बढ़ाना है। ये फिलॉसफी को लेके न्यू टैक्स बिल लेके आए जिसको कैबिनेट ने तो पास कर दिया लेकिन अभी वो अगले सप्ताह वो सेपरेटली 1962-61 में ये हमारा जो करंट इनकम टैक्स एक्ट आया था उसके बाद से सेम चल रहा है। उसको कई मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट हुए तो वो बहुत बल्कि हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो एक सिंप्लीफाइड टैक्स बिल नया सरकार लेके आएगी। टैक्स रेट में स्लैब्स में कम तो कर ही दिए, कॉर्पोरेट टैक्स, GST और पर्सनल टैक्स भी इसमें कम कर दिए जो कि हम लोगों को सबको बहुत ही ज़्यादा मिडिल इनकम को, न्यू मिडिल इनकम को जो कि बहुत राइज कर रही है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो टैक्स रिफॉर्म्स सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इसमें करने की बात की है। 6 एरियाज अपने काम के लिए इस साल आइडेंटिफाई किए हैं। Besides, this is the fourth important part of our budget proposal this time. That is 6 areas of reform to transform, and they are very important. कि उसमें सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली है। ये नहीं कहा कि जैसे दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा कि यमुना सफाई ये नहीं करने दे रहा, वो LG मुझे ये काम नहीं करने दे रहा। you are transferring your responsibility to different people, and why people have selected you, why citizens have elected you. You have to perform in the current situation only. Situation को आप चेंज नहीं कर सकते, in the situation you have to perform. So उसलिए सरकार ने अपने लिए 6 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। वह है टैक्सेशन के अंदर कर आमूलचूल परिवर्तन जिसको कहें, सिंप्लीफिकेशन के रूप में सरकार लेके आएगी ड्यू टैक्स एक्ट के अंदर। रेट को तो कर ही दिया है। दूसरा है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बहुत हुआ है। लोगों को मैं कई गांव इधर दिल्ली के कई क्षेत्र में गया, वो उन सब में जो हम देखते हैं कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बड़ा हुआ है। सैनिटेशन, वाटर, हाउसिंग, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, तो इन सब चीज़ों में पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को सरकार ने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। उसके लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से 1 लाख करोड़ का फंड सरकार ने बनाया है। उसमें कॉम्पिटिटिव स्टेट, देखिए लास्ट माइल डिलीवरी हमारे यहाँ पे स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंटर गिव्स फंड बट द एक्चुअल बेनिफिट टू द कॉमन मैन इज कम थ्रू द स्टेट्स।
तो सरकार ने उनके लिए भी काफ़ी इसमें प्रावधान किए, क्योंकि जो सरकार बजट के माध्यम से फंड ट्रांसफर तो हरदम बढ़ाती जा रही है, लेकिन उनके अंदर एक इंडेक्स भी बनाया है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, क्योंकि जो कुछ स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ज़्यादा पैसे जाने चाहिए, जो परफॉर्म नहीं कर रहे रिफॉर्म्स के रूप में उनको कोई कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप सरकार के कंट्रोलिंग के रहने चाहिए। और इसके लिए एक वॉलंटरी कंप्लायंसेस भी हो सके, तो सरकार ने एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स फॉर द स्टेट्स बनाया है, ताकि जो अर्बन डेवलपमेंट का जो ह्यूज फंड है, जो वेरियस स्कीम्स हैं, सभी स्कीम्स का बहुत सारी स्कीम्स है, मेजॉरिटी ऑफ पैसा सरकार का उन स्कीम्स के माध्यम से स्टेट्स को जाता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ऐसे महत्वपूर्ण जो स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री स्वच्छ ये जो जीवन सुरक्षा योजना है, इन सब स्कीम्स के अंदर जो जाता है स्टेट को पैसा जाता है, तो अगर स्टेट एफिशिएंटली उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते या कंप्लाई नहीं करते, बहुत सारे स्टेट्स हैं, पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, कई स्टेट्स को फंड एलोकेट किए हुए हैं, यूटिलाइज ही नहीं किए, बैठे हुए हैं, पॉपुलरिज्म के में केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गवर्नेंस में फेलियर है, तो वो एक इंडेक्स बनाया है। तो अर्बन डेवलपमेंट इज द सेकंड area where basic amenities of what is for health, for sanitation, and health hospitals, new seats, district level hospitals, इन सब के लिए प्रावधान किए। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पूरी तरह से सरकार ने इंडस्ट्री और उसके लिए किए हैं, उसमें जन विश्वास बिल भी लेके आए ट्रस्ट के लिए, और फिर मैंने बताई दिए रेगुलेटरी रिफॉर्म फाइनेंशियल सेक्टर और उसमें किए। फोर्थ इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री इंडिया की बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.8% है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 6% के करीब है, बट हमारी सर्विस इंडस्ट्री जिससे हम ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज वगैरह भी मिलती है और हमारे लोग ग्लोबल लेवल पे आईटी और इन सब सेक्टर्स में हम ग्लोबल लीडरशिप अचीव कर रहे हैं, तो उसमें हमारा फाइनेंशियल सेक्टर में सर्विस इंडस्ट्री 12% से ग्रो कर, तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरी है, उसमें रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कंप्लायंसेस बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, तो उसके ऊपर रिफॉर्म्स है। चौथा और पांचवा पावर के बगैर हमारे देश में कोई भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन नहीं बन सकता, तो पावर के अंदर हमारा 70% जो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है इंपोर्ट की, वो पावर सेक्टर के यानी और ये जो फॉसिल फ्यूल है इसके इंपोर्ट में खर्च हो जाती है, और हमारा मेजॉरिटी ऑफ इंपोर्ट जो बिल इतना ज़्यादा है जिसके कारण फिस्कल डेफिसिट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है कभी कभी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कमोडिटी प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, ऑयल खासकर, तो उसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस इसमें किया है। पावर सेक्टर को काफ़ी स्ट्रांगली सरकार ने अपने लिए रखा है, और 100 वो है जो 100 गीगा वॉट का न्यूक्लियर पावर, क्योंकि इट इज द चीपेस्ट पावर, रिन्यूएबल, इट्स रिन्यूएबल, फॉसिल फ्यूल हमारा नहीं जाएगा। 80% ऑफ आवर फ्यूल रिक्वायरमेंट इज टू बी इम्पोर्टेड, और उसके कारण हम कई बार कई कंट्रीज के कंट्रोल जो आ जाती है उसके कारण भी ये रहते हैं, और इसलिए पावर सेक्टर में बहुत सारा रिफॉर्म टारगेट, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में टारगेट किया है। और माइनिंग, इंडिया इज रिच इन माइनिंग, हमने सुना होगा कि न्यूक्लियर उसके लिए या डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं, उसके ऊपर सरकार ने उनको एक्सट्रैक्शन, उनके लिए उनकी सेफ्टी, इन सब पे भी काम। तो ये 6 सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर सरकार ने अपने लिए काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किए। तो मैं ये आपके सामने अपनी बात खत्म करने रखता हूँ ताकि सारे क्वेश्चंस भी आ जाएं। एक आपको सबसे बड़ी चीज आपको देखनी चाहिए, एक ये पाई चार्ट होता है, कहीं भी गूगल पे मिल जाएगा कि 1 रुपया अगर बजट में आता है तो वो कहाँ कहाँ से आता है।
अगर सरकार के पास 1 रुपया आता है, अगर हमारे पास 35 लाख करोड़ से ऊपर का एनुअल कलेक्शन है, तो उसमें इनकम टैक्स से 22% आता है। एक्साइज ड्यूटी जो है और कई बार लोग हमें गलत कहते हैं कि हमारे यहाँ एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा, वहां से 5% आता है। जीएसटी एंड अदर कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से 18% आता है। कॉर्पोरेट टैक्स यह 17% है। 17% कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। बाकी चीजें हैं और बोरोइंग, ठीक है। ये एक बात बोरोइंग और इस पे फिस्कल डेफिसिट पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई घर में कमा रहा है 1,000 रुपए और खर्च कर रहा है 12 रुपए, तो वो घर चल नहीं सकता। ऐसे ही देश भी जो आप बात कर रहे हैं, तो पीछे कई डेट टू इक्विटी उधार ले लेके आप अपनी सरकार नहीं चला सकते। पीछे काफी उधार एक्यूमुलेट हो चुका है, तो सरकार ने, जबकि ग्रोथ के लिए लिक्विडिटी और फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट, सरकार एक तो ये कर रही है कि जो भी बोरोइंग करती है उसमें एसेट क्रिएशन, अगर कुछ भी बोरो कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ये बने, तो यह सारी चीजें वो पिछले सरकार पूरी तरह से बोरोइंग को धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है। वह 24% के करीब जो बोरोइंग लाइबिलिटीज के अंदर 1 रुपए के अंदर 100 में से 24% आता है। और जो खर्चा जो सरकार करती है उसमें कई बार कोई लोग कमेंट करते हैं, कई लोग हमारे क्रिटिकल लोग वो कहते हैं कि भाई आपने इस स्कीम में, एक स्कीम का वो डेटा देंगे और इस स्कीम में मनरेगा का मान लो डेटा दे दिया कि आपने पिछले साल इसको 62,000 करोड़ का प्रोविजन किया था और उसके बाद कोविड के टाइम पे 90,000 करोड़ हो गया क्योंकि अचानक ऐसी स्थिति हो गई, अब आपने 80,000 करोड़ का प्रोविजन किया है। अरे मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, दीज आर मेजोरिटी स्कीम्स आर डिमांड ड्रिवन। जिस चीज की जिस स्कीम, मान लो अगर हमने हर घर जल में 12 करोड़ लोगों को जल दे दिया, तो पिछले साल हमने 4 लाख करोड़ का प्रोविजन किया था पानी प्रोविजन के लिए घरों में, तो इस बार उतनी जरूरत नहीं है तो हम कम करेंगे। तो वे मेजोरिटी ऑफ स्कीम्स आर डिमांड ड्रिवन। और अगर और डिमांड ड्रिवन का ये भी मतलब है कि अगर जरूरत होगा तो सप्लीमेंट्री बजट लेके और सरकार ले आएगी। तो यह क्रिटिसिज्म की इस स्कीम में एक फिगर एक दे के आप करने लग जाओ कि इस स्कीम में कम कर दिया, इसमें बढ़ा दिया, इसमें ये हो गया, ये सेक्टर को आपने छोड़ दिया, तो यह गलत है। यह डिमांड ड्रिवन है। जिसकी जिस वक्त जिस स्कीम में जितनी आवश्यकता होगी सरकार उसको इंक्रीज भी कर देती है, तो वह पूरी तरह से। और स्टेट्स को ह्यूज फंड सेंटर बढ़ा रहा है। एक ही फिगर मैं देना चाहता हूँ, फेडरल स्ट्रक्चर में कई लोग क्वेश्चन करते हैं, जबकि जो टैक्स कलेक्शन सरकार का 17 से 18% का बढ़ा है रिसोर्सेज, बट स्टेट सेंटर का उतना रिसोर्सेज नहीं बढ़ा है। सरकार ने स्टेट्स को ज्यादा ट्रांसफर किया, जीएसटी के अंदर स्कीम्स टाइड अप करने के बाद स्टेट्स का ही ज्यादातर जो है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंटर बढ़ा है। तो यह पूरी बात है। लास्ट में वाइंड अप करने के लिए मैं समराइज कर देता हूँ। क्लियर विजन सरकार ने विकसित भारत की दी है, उसमें 4 है। जीरो पावर्टी, 70% ऑफ विमेन पार्टिसिपेशन, क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। फिर 4 सेगमेंट्स का क्लियर कट आइडेंटिफाई किया जो हर स्कीम में किसी न किसी स्कीम, इन 4 में से किसी सेगमेंट को बेनिफिट मिलता है। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, ज्ञान। उसके बाद 4 ग्रोथ इंजन आइडेंटिफाई किए, वो है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट इनटू इकोनॉमी, पीपल एंड इनोवेशन एंड एक्सपोर्ट। और 6 एरियाज जो सरकार ने आइडेंटिफाई किए फॉर रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वो है टैक्सेशन, अर्बन डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो कंप्लायंसेस के इंडस्ट्री वगैरह के लिए है, जो चाहे माइनिंग के हो कुछ भी हो, फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, पावर एंड माइंड। तो यह एक ओवरऑल पिक्चर बजट की मुझे लगता था। इंडिविजुअल प्रोविजंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जाना नहीं चाहिए क्योंकि आज हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत फाउंडेशन पे पहुंच चुकी है और एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है जिसमें एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन भी है, विदाउट करप्शन लीकेजेस के, और डिलीवरी मैकेनिज्म भी है। तो मुझे लगता है कि यह बात इनिशियली
आप सबके सामने रख रहा हूँ। और आप लोग पीआईबी की वेबसाइट पे जाइएगा जब भी कोई चीज़ देखनी है। या ट्विटर वगैरह पे गवर्नमेंट की पीआईबी में प्रेस रिलीजेस सब आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ना चाहिए, एग्जीक्यूटिव समरी तो जरूर पढ़ना चाहिए। मैं एग्जीक्यूटिव समरी आपको और ये बजट के प्रावधान का पीडीपीबीटी ये आपको दे दूंगा, तो उससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी। ये इसलिए जरूरी है समझना कि areas where government investment is coming, you should align your career with that। हम जो अंत्योदय या जो दीनदयाल जी की जो बात करते हैं उसमें वो जो व्यक्ति को केंद्रित करके हमने जो व्यक्ति और समाज परिवार व्यक्ति परिवार समाज और देश और विश्व की जो परिकल्पना की है वो स्पाइरल की है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं है कि इंडिविजुअल पर्सन इज एट द सेंटर, उसके बाद एक सरकमफ्रेंस में एक सर्कल बना हुआ है वो उससे कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है। फिर उसके बाद फैमिली आ गई, फैमिली के बाद समाज आ गया और समाज के बाद देश आ गया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं है बट इट्स ए स्पाइरल कि व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव फैमिली के ऑब्जेक्टिव से मिल जाए, फैमिली का ऑब्जेक्टिव समाज के ऑब्जेक्टिव से मिल जाए, समाज का ऑब्जेक्टिव देश के साथ अलाइन करके चले, देश का विश्व के साथ। तो एक स्टेज बाय स्टेप डेवलपमेंट अगर होती है तो एक अच्छा व्यक्ति का भी डेवलपमेंट होता है और उससे समाज को भी बेनिफिट और देश को भी बेनिफिट होता है। तो उस सारी परिकल्पना को, चाहे अंत्योदय है, जो स्पाइरल, जो एकात्म मानवतावाद वाली बात है, ये सारी बातों को लेके और बिजनेस, और सबसे बड़ी बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी में बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्री को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं इन नेशन। थैंक यू। सर, आपने काफी सहजता से बजट के प्रोविजन पर प्रकाश डाला है और अभी छात्रों से अनुरोध करती हूँ कि वो क्वेश्चन एंड आंसर एनीवन नो वहीं से पूछो, जोर से, खड़े होके। इंट्रोडक्शन दे दो। इंट्रोडक्शन देंगे। और अगर हम जब मेक इन इंडिया स्कीम को देखते हैं तो उसका अगर हम एग्जामिन करते हैं तो वो मैक्रो लेवल पे सही दिख जाता है, लेकिन उसको बहुत से डिसाइड किया जाता है इन टर्म्स कि जो उसमें कैपिटल आ रहा है वो फॉरेन कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो आप उसमें डोमेस्टिक कैपिटल कैसे बढ़ा रहे हैं और मैक्रो तो सही लग जाता है, लेकिन फिर भी इसका पूरा पिक्चर देखने को मिलता है। ये भी कहा जाता है कि पीएलआई नहीं, देखिए भारत सही है, प्रश्न आपका सही अच्छा है। देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक चैलेंज है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे कम फॉर्मल यानी फॉर्मेशन हो रहा है और सरकार ज़्यादा खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट। जब पीएसयूज में भी मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है काम करने का, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर 10 लाख करोड़ का कैपेक्स का प्लानिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर रही है और सरकार लगभग 11,000 करोड़ का एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में कर रही है, तो उसका पर्पज यही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अभी अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर। जब प्राइवेट सेक्टर का 70% कैपिटल ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है तब वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डिमांड क्रिएट करना है, और डिमांड कैसे क्रिएट होगी, कंजम्पशन से होगी और एक्सपोर्ट से होगी। तो इन दोनों पे फोकस, तो जो टैक्सेशन में मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन मैन जो सारा है, वह एक पर्पज है ताकि कंजम्पशन के लिए बढ़े, कंजम्पशन बढ़े, मोर लिक्विड फंड पब्लिक के पास हो और उस लिक्विड फंड से कंट्री में डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट हो और एक्सपोर्ट के साथ एफिशिएंसी लाके एक्सपोर्ट का डिमांड क्रिएट करना है। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे कई लोग कहते हैं चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट बढ़ गया, तो आज के समय में अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर या मोबाइल सेक्टर इतना क्यों हमारा तेजी से बढ़ रहा है,
क्योंकि हमने उसको ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट किया हुआ है। अच्छा, ग्लोबल, और अब मान लो आज मोबाइल बन रहा है, इसकी स्क्रीन कहीं बनेगी, बैटरी कहीं बनेगी, उसका कवर कहीं बनेगा, एक कंट्री नहीं करता, असेंबली करते, वैल्यू एडिशन बढ़ानी है, बट लेकिन बैकवर्ड भी इंटीग्रेट करना है और फॉरवर्ड भी इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना या कुछ आसियान कंट्रीज का स्ट्रांग है, तो हमें उनके इंपोर्ट को भी खोलना पड़ता है। इसलिए बायलेटरल ट्रेड ट्रीटी जो पीयूष गोयल और जो हम सब लोग कर रहे हैं कि हमें ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ बायलेटरल ट्रेड ट्रीटीज भी करनी है, पीछे को भी करनी है। तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिसमें ब्रिक्स में भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, G20, G7, आज के समय में क्वाड, ये सारे जो है ये ट्रेड एग्रीमेंट्स के सारे ब्लॉक्स हैं, गैट है, ये तो यह आरसेप है, आसियान है। तो इन सब में सरकार काफी तेजी से काम कर रही है और बहुत अपॉर्चुनिटी, मैं बता रहा हूँ कि इतने सालों से मुझे पॉलिसी इंटरवेंशन में काम करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन चीजों में रिसर्च कम होता है। अब आपको किसी पॉलिसी सरकार लेके आई, अब उसका इम्पैक्ट इतना सिंपल नहीं है। हम एक एग्जांपल दे दूं कि हमने शुरू में क्या हुआ, कुछ कोविड के बाद सडनली ये डंपिंग हुई, स्टील, सीमेंट, ये बेसिक मटेरियल की इंडिया में डंपिंग हुई। इंडस्ट्री का डिमांड आया कि ये डंपिंग हो रही है तो हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, आप कस्टम ड्यूटी बढ़ा दो। सरकार ने बढ़ाई, बढ़ाई तो क्या हुआ कि अब स्टील सीमेंट महंगे हो गए, तो हमारी जो MSME सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो गई ग्लोबली। तो फिर धीरे धीरे हमें कम करना। तो इन चीजों में जितना ये कॉन्ट्रैक्ट डिजाइनिंग, अब ग्लोबल आर्बिट्रेशंस होती हैं, ये बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं। ग्लोबल आर्बिट्रेशन में हमारे केसेस हम लूज कर जाते हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भारत में बने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बने, हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है, ये जो हांगकांग, सिंगापुर और लंदन, ये इनकी मेजर इकोनॉमी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के कारण इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और वहां पे मेजॉरिटी इंडियंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम उन चीजों को यहाँ पे डेवलप करें, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जो कई सारे सेंटर्स हैं, सिंगापुर का मेजॉरिटी ऑफ इनकम उनकी सर्विस सेक्टर में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के थ्रू आती है। तो यह अपॉर्चुनिटी लॉ फॉर लीगल है, इन सब चीजों में बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, रिसर्च की, ग्रोथ की, हमें ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशन की, कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन की, इन सब चीजों में इंडिया में ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है और हम अंडर कैपेसिटी पे हैं इन सब सेक्टर्स में। आप सब लोग अच्छा काम कर सकते हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इज कंप्लीट नेगोशिएशन, बार्गेन है बायलेटरल ट्रेड में। इफ यू गिव समथिंग यू गेट समथिंग, यू कैन नॉट जस्ट से कि मुझे तो ये दे दो, ग्लोबली यू विल बी आउटलायर, आपको बाहर कर दे। तो आपको नेगोशिएट करना है, जियो पॉलिटिक्स के अंडरस्टैंडिंग करनी है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना है, उन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में कैसे आप अपनी बार्गेन पावर को बढ़ाते हैं, ये सब चीजें है ना। तो सब में काम कर रहे हैं, बट हमारा बेसिक जो आपने कहा कि हमारा फॉरेन इसलिए आता है कि वी आर शॉर्ट ऑफ कैपिटल, लेबर, लैंड एंड कैपिटल, तीन चीजें में प्रोडक्शन के जो है फैक्टर्स, उसमें लैंड एंड लेबर हमारे पास अबंडेंट है, कैपिटल शॉर्ट है। तो हमें FDI भी अट्रैक्ट करनी होती है, गवर्नमेंट भी इसलिए फंडिंग के थ्रू जा रही है। और कोई एक मिनट, ये कह रहे हैं, हाँ, आप पूछ रहे हैं? हाँ, इसीलिए मैंने बताया ना कि स्टेट को टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, लगभग 17 से 26% का अलग अलग सालों में टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर भी सेंटर का जो पोर्शन है वो नहीं बढ़ा, स्टेट का बढ़ा। इसका मतलब डिवोल्यूशन ज्यादा हो रहा है।
सेंटर ने पूरे स्टेट्स को डेट के लिए एक स्पेशल 50 इयर्स की एक विंडो भी क्रिएट की है कि आपको उसका इंटरेस्ट सबवर्जन करके आप डेट ले सकते हैं, वो विंडो भी खोली है। तीसरा, ये जो इंडेक्स बनाया है, ये जो मैंने बताया था ना अभी, ये जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स स्टेट को, कि अगर आप बेटर परफॉर्म करेंगे, जैसे मैं आपको वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दे दूं। वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का एक भी पैसा किसानों को नहीं गया। मैं एक बैंक के बोर्ड पे भी था, उस वक्त ये बात हो रही थी। हम उनसे बोलते थे कि आप किसानों का डेटा दे दो, हाँ? किसानों का डेटा यानी डेटा दे दो, उनके बैंक अकाउंट दे दो, हम यहाँ से सेंटर से यानी मिनिस्ट्री कहती थी कि सेंटर से बैंक के थ्रू होता था तो हम फंड ट्रांसफर कर देंगे, तो वो डेटा देने को तैयार नहीं थे। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम जो कि बहुत सक्सेसफुल चल रही है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, वो उन्होंने लागू नहीं करी। तो जो स्टेट परफॉर्म नहीं करेंगे, जो स्टेट स्कीम्स को नहीं लेके आएंगे, तो उन लोगों को कम डिवॉल्व होगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स बनाया कि ऑटोमेटिकली जो 16 या 15 फाइनेंस कमीशन है, वो उन सब फैक्टर्स को, कई बार पॉपुलेशन, वो सब चेंज करेगी। अब 15 फाइनेंस कमीशन जो भी डेटा बताएगी कि इस बेस पे ट्रांसफर डिवॉल्व करना है, वो करेगी। लेकिन सेंटर ने ये बिल्कुल कोई भी पैसा, ना जीएसटी का या जो स्कीम्स का, कोई भी पैसा ऐसा नहीं है जो डिवॉल्व नहीं किया स्टेट्स। नहीं नहीं, एस्टिमेट के बेस पे नहीं हो रहा। एस्टिमेट के बेस पे केवल पॉलिसी बनती है। एनएसएसओ डेटा में अगर अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, तो ये तो सर्वे तो ग्लोबल लेवल पे सर्वे ही होता है, तो सर्वे इज द ओनली वे। अदरवाइज तो आप 140 करोड़ लोगों से हर बार तो नहीं आप कर सकते। तो सर्वे इज एन इम्पोर्टेंट। इवन आरबीआई के आप देखो, आरबीआई के पास जो डेटा है वह बहुत अच्छी था, लेकिन जो डेटा सर्वे वगैरह का यूज होता है वो पॉलिसी के लिए होता है, और उसके उसके बेस पे फंड ट्रांसफर नहीं होता। पॉलिसी बनती है, फंड ट्रांसफर तो एक्चुअल डेटा के बेस पे होता है। इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 50 करोड़ जन धन अकाउंट जो बने, उसके अंतर्गत जो बीपीएल है, इनकम सर्टिफिकेट लगता है। हम तो काफी इस फील्ड में काम करते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं में लोगों को जोड़ने का। तो उसमें हम लोगों ने बिल्कुल देखा है कि इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए। डेटा का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसमें डेटा शेयरिंग के लिए भी बहुत प्रोविजन। डेटा, ग्लोबल डेटा सेंटर भारत में बन रहे हैं। डेटा सेंटर के साथ सरकार भी ओपन अप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि डेटा का कई बार मिसयूज भी होता है। लेकिन अब सरकार एनोनिमस डेटा क्रिएट करके उसको कम से कम इंडिविजुअल डेटा तो प्रिवेसी भी रहे, और उस डेटा का जो फैक्टर्स है वो सबके साथ शेयर कर सके। That would be the last question. Take one or two more questions. Sagar, you too. या ऐसा कर सकते हैं कि दो तीन सब आप पूछ पूछिए, ले, मैं एक साथ ही एक साथ। जवाब दे I'll दूंगा, be- जोर से थोड़ा। आप आगे आ जाओ थोड़ा। ठीक है, आपके दो पॉइंट हो गए। एग्रीकल्चर सेक्टर के
ठीक है, 2 पॉइंट है ना आपके। एग्रीकल्चर सेक्टर में हायर इनकम वालों को क्यों नहीं टैक्स करना, और इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है वो क्या करना। मैंने ही एग्जांपल इसलिए दिया था कि वी आर नॉट रिजिड ऑन द पॉलिसी लेवल, बिकॉज कंटिन्यूअसली चेंज करना होता है। ठीक है, फिर भी आपका जवाब देना, के शेप का भी बताओ। यस 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 यस, ठीक है। और कोई, ये 2 दे दूं जवाब, आप देना। हाँ, ठीक है, ये तीनों मैं दे देता हूँ। ठीक है, आप दोनों का पहला क्वेश्चन एक ही है, इनइक्वालिटी इज ए प्रॉब्लम, है ना, वो तो है ही, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये तो है नहीं कि आज इसी साल इनइक्वालिटी बनी है। तो inequality is a problem and that can be only tackled through distribution of wealth, resources from the central government. नहीं, वो ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। अभी मैं मान रहा हूँ ना, inequality is a problem, तो वी आर वर्किंग ऑन टैकलिंग द inequality। और अगर 25 करोड़ लोगों को हमने पीछे 4-5 साल में गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है, तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। और जब हमने टारगेट लिया है कि 100% पॉवर्टी एलिवेशन, ये गरीबी हटाओ नारा नहीं है, गरीबी हटाओ का काम करने का काम है। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे कि वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग, now there is no poor people, there is no equality. We are accepting this challenge. This inequality has been underlined in the economic survey also. So, first thing to tackle a problem is to identify a problem. So, inequality is a problem, but that doesn't mean कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को गरीबी बांटना शुरू कर दो, उनको गरीब। मैंने कहा ना कि वी आर नॉट वर्किंग इन अ डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल वेयर इफ वी कैन नॉट मेक एवरीबडी रिच, तो जो अमीर है उनको गरीब कर दिया जाए, उनको भी कर रहे हैं। तो यह प्रॉब्लम है, बट के शेप रिकवरी नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है। कॉर्पोरेट लेवल पे किस लिए प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स भी कम किया, इसीलिए इस बार कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं छेड़ा और हमने इंडिविजुअल टैक्सेशन को खत्म किया। और ग्रोथ इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की क्रिएट करके ही होगी, तो वह उस तरीके से काम कर रहे हैं। वी नो दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर कमिटेड टू डू इट, एंड वी आर कमिटेड टू क्रिएट 100% poverty elevation. We have done a lot, but we have to do more। एक बात। दूसरा, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा संविधान, कई बार हम कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, हम बदलने वाले ना है ना थे, अमेंडमेंट इज नॉट बदल देना। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर इज ए स्टेट सब्जेक्ट,
एंड हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैन नॉट टैक्स एग्रीकल्चर, ये हमारे संविधान में है। तो हाँ नहीं ठीक है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ ओरिएंट करके ही उसमें जो हाई वाले हैं तो वो स्टेट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, टैक्सिंग द एग्रीकल्चर हैज बीन पुट अंडर द, जो भी वो लेते हैं ऑन द स्टेट, सेंटर इज नथिंग टू डू विद दैट। तो अभी है वो वाला आपका इशू, ठीक है, बट इट इज ए डिफिकल्ट सिचुएशन क्योंकि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर काफी गरीबी, मतलब उसमें हम देखते हैं किसानों की आत्महत्या वगैरह भी होती है, तो वो और वो मैनिपुलेशन वो आप बता रहे हो ना, जो वो करप्शन का इशू है। कोई किसान एक 10 करोड़ रुपए साल के वो तो इसलिए उस चीज को हम जो आप कहते हो कि लोग कहते हैं कि ये नोटिस जाते हैं, सब लोग जिनने 1 करोड़ से ऊपर एग्रीकल्चर इनकम दिखाई थी उन सब से नोटिस पीछे 2 साल में दिए हैं, उनसे डिटेल मांगे हैं, तो बहुत सारे टैक्स इवेजन और मैनिपुलेशंस पकड़े हैं और वर्चुअल असेसमेंट लेके आए हैं, ई असेसमेंट है जिसमें ऑनलाइन सारा, और डेटा सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार ट्रांजैक्शनल डेटा के ऊपर बहुत काम कर रही है। अब डिजिटल पेमेंट वगैरह जब हो रहा है, वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो ह्यूज डेटा इज जनरेटेड विच विल क्रिएट अ बैंक ऑफ ऑडिट, एडिट ऑडिट ट्रेल जो क्रिएट होती है, ऑडिट ट्रेल से ट्रांजैक्शन पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं कि जितने टैक्स पेयर नहीं है उससे ज्यादा तो हमने 50-50 लाख की गाड़ियां खरीद रखी है, तो ये सब डेटा से पकड़ करके सरकार उसमें काम कर रही है। वही तो मैंने बता दिया ना, एग्रीकल्चर का मैंने बताया, और उसके टैक्स इवेजन को या मैनिपुलेशंस को कंट्रोल कर, दैट इज नॉट दैट वी डोंट वांट टू टैक्स एग्रीकल्चर। कुछ चीजें तो हमने एक्सेप्ट भी करनी है ना कि हम वी आर नॉट एट प्रेजेंट, अवर थिंकिंग इज नॉट टू टैक्स एग्रीकल्चर, इट मे बी देयर मे बी सम फिश, बैड फिश विच विल स्पॉइल द वाटर, बट उसके लिए पूरे पानी, मतलब सारी मछलियों को हम नुकसान नहीं पहुंचाएं, ये बात है। और आपका क्वेश्चन केशव का मैंने बता जितना हो सकता था। आपने ये जो ये अभी मैंने उस बात में आपका जो एमएसएमई का टैरिफ की बात की थी, टैरिफ देखिए इकोनॉमी में क्या होता है कि इट इज ऑलवेज मल्टीपल ऑप्शंस को बैलेंस करना होता है, तो इट इट यू कैन नॉट हैव ए परफेक्ट बैलेंस इनटू इकोनॉमिक ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। तो टैरिफ में भी यही होता है कि ग्लोबल ट्रीटीज को भी हमें देखना है, डोमेस्टिक लार्ज इंडस्ट्रीज को भी देखना है, डोमेस्टिक स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी देखना है, कंज्यूमर भी देखना है। जैसे ये होता है कि भाई जब कमोडिटी प्राइसेस में ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा एग्जाम्पल, कि मान लीजिए किसानों ने अनियन बहुत पैदा किया, अब अनियन का प्राइस घट गया, तो हम उसको कंज्यूमर को फायदा हो गया लेकिन किसान को नुकसान हो गया। तो हमें पॉलिसी को बैलेंस करना होगा कि उस वक्त अगर हमने मान लो, और फिर जब वो कहते हैं इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी, कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट बैनिंग वगैरह, कमोडिटी में ये बहुत होता है। तो मान लो आलू कम पैदा हुआ इस बार, तो आलू का प्राइस बढ़ गया, किसान बहुत कम फायदा हो गया, फिर कंज्यूमर को महंगा पड़ गया। तो सरकार को कहते कि कंज्यूमर कहेगा कि आलू इंपोर्ट कर दो, किसान कहेगा मत करो, तो सरकार इनको बैलेंस करती है। तो टैरिफ, इसीलिए आपका जो प्रश्न जो मैंने एक्सेप्ट किया था कि टैरिफ में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, वो पॉलिसी में जो बीच में वो होता है। नहीं, सरकार इज नॉट डूइंग, देखिए अगर आप 2010 में हमने आसियान कंट्रीज के साथ बायलैटरल ट्रेड ट्रीटी करी थी, है ना, 10 कंट्रीज के साथ ट्रेड ट्रीटी कर दी, उन्होंने ह्यूज डंपिंग कर दी और हमारी डोमेस्टिक एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह से नुकसान हो गया। हमने आके उस आसियान की जो ट्रीटीज है उनको रिव्यू किया, आरसेप में नहीं किया क्योंकि आरसेप चाइना डंपिंग कर सकता था। तो इसलिए, और इसीलिए अपॉर्चुनिटी भी है, मोर स्टडी इज रिक्वायर्ड,
more economists are required, more researchers are required, more data scientists are required, then more public policy के expert चाहिए. आज अब public policy के कितने कोर्स हैं हमारे देश. तो हमने कुछ चीजें इनहेरिट भी की. हर चीज मतलब ये ठीक है कि 11 साल से हमने, लेकिन वी हैव ट्राइड बट वी हैव इनहेरिटेड आल्सो सर्टेन लीगेसीज जो कि हमें ठीक करने की बात है. जिसका एक सबसे बड़ा है कि डिस्पैरिटी इज नॉट ए क्रिएशन ऑफ करंट गवर्नमेंट. दो ये कह सकते हो कि 10 साल में, लेकिन वी हैव ट्राइड बट वी हैव नॉट अचीव दैट फुली. ठीक है, थैंक यू.